Okay, so I'm going to interact with Dev. He's doing his PhD. I think recently joined in prestigious IIT Bombay, and he's in civil engineering department, environment science. So you know why this interaction is very important, because many students think that you need to have MTech from very prestigious institutes like NIT, IIT, or something government institutes to get into PhD in institute like IIT Bombay, which is choice number one for most of you. Dave has not done his MTech from such institute. Dave has done his BTech from private college, and MTech also from semi-government college. So that means name of the college are not very famous, but his work is very good, and he has done work from CSIR NEERI, which is another information he will give you. And his project was very good. And after MTech, he was having research papers, 3 research papers as per him in Elsevier. So research work was good, and CGPA is the criteria. So gate score is not required if you have MTech, but MTech CGPA should be good. You need to have CGPA sometime more than 8.5 to get call from institutes. The moment you get call, then maybe interview or written exam in IITs, that can also be there. He provided two more very relevant information. Number one, as you know, PhD scholarship as of now is 32,000 rupees for TA, but there's a PMRF domain also, Prime Minister Research Fellowship, which is very prestigious. 75,000 you start getting, and there is after first or second semester of PhD. So if you do really good work in PhD, you can get into PMRF. That scholarship is also there. So as per Dev, out of 14 students, I think 5-6 students only are eligible, because in PMRF you need to have 8.5 CGPA in PhD. And second, he said, okay, after PhD, if you don't get into job, suppose, then you can get into postdoctorate fellowship of IIT Bombay itself, in which you start getting 85,000 rupees. So let's have interaction with the Dev, and those of you who will be interested to have session with Dev, I have invited him, I have called him, that interact with the students so that they get more information. So we can have common session with Dev. He can give us more information. So let's go and listen all this in totality. Those of you who are interested, listen this interaction in totality so that you get more information. Okay, so Dev, let me thank you for the time you spared for this interaction today. Thank you, sir. Okay, Dev, you are doing your PhD in prestigious IIT Bombay in environment engineering. Yes, sir. And you are from civil engineering background, and you have done MTech first, and then after MTech you joined this PhD course. So Yes, Dev, sir. I would like to know in detail about this particular course in IIT Bombay, and more important, how to get into this particular course, because there are so many students who are doing MTech or who have done MTech, and they want to land up in PhD courses of prestigious institutes like IIT Bombay. So this interaction will be very helpful for them, Dev. तो पहले चलते हैं देव आपके बैकग्राउंड की तरफ. प्लीज टेल अस, आपने ग्रेजुएशन कब किया, कहां से किया, और फिर आपने मास्टर्स कहां से किया, कब किया, और क्या मास्टर्स के साथ जो आपने मास्टर्स का जो सीजीपीए वगैरह था, बीटेक का सीजीपीए, मास्टर का सीजीपीए, तो आईआईटी बॉम्बे की कॉल लाने के लिए, इंटरव्यू कॉल आने के लिए क्या रिक्वायरमेंट था? गेट का रिक्वायरमेंट था कि साहब सीजीपीए का रिक्वायरमेंट था? आप अपना कैटेगरी भी हमारे साथ शेयर कर दीजिए. हाँ जी. जी हाँ सर. सर मैंने पहला बीटेक कंप्लीट किया, बीटेक बी मैंने किया था पुणे यूनिवर्सिटी से 2017 में. लोकल प्राइवेट कॉलेज था वो. फिर देन आई वेंट फॉर माय एमटेक. That was also a semi-government college in Nagpur, GH Raisoni College of Engineering. But sir उसमें कैच ऐसा था कि वो कॉलेजेस के कोलैबोरेशंस काफी अच्छे थे इंडस्ट्रीज में. So one of the collaboration was with CSIR NEERI. So environmental engineering के लिए one of the best central government institute है that purely works on environmental aspect, and the only institute currently after IIT Bombay. Okay. So during my second year, I was working under one of the scientists at CSIR NEERI. So वहाँ पर बहुत सारे funded projects थे. So one of the funded project was from DST. It was very prestigious project. So I got the chance. So I started working there for 1.5 year. Then COVID came in middle, but still I extended my MTech degree actually for 6 months because my work was left. And I wanted to get some publication from there itself because वहाँ से फिर वापस chance नहीं मिलेगा. So I did my masters from there. 1.5 years of internship nearly. I completed that project, DST project. I got some good publication. I got 3 publications out of there. All were in Elsevier. So after that, once I got publication in December, I got into IIT Bombay. So getting into IIT Bombay, initially in June also I have tried,
बट सर जून में तो मैं सिलेक्ट ही नहीं हो पाया, फर्स्ट राउंड ही क्लियर नहीं हुआ मेरा। ओके। सो एक्चुअली कैच ऐसा था उसमें, सीजीपीए इज वेरी इंपॉर्टेंट, एमटेक सीजीपीए इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो मैंने क्या किया था पर्सनली, मैंने 1 ईयर जो था मेरा एमटेक का, मैंने प्योरली कोर्स वर्क पे फोकस किया। सो ड्यूरिंग माय एमटेक आई वाज गोल्ड मेडलिस्ट इन माय यूनिवर्सिटी, इसमें मेरा पॉइंटर बना था 9.86। सो इट वाज वेरी हेल्दी, बहुत अच्छा पॉइंटर बन गया था। और फिर वो पॉइंटर के बेस पे मेरा स्क्रीनिंग हो गया आईआईटी बॉम्बे के सिलेक्शंस में। तो जस्ट आपने स्क्रीनिंग कर लिया तो आप एलिजिबल हो जाते हो कोई भी पीएचडी कोर्स के लिए, एटलीस्ट इन माय डिपार्टमेंट नो गेट इज कंपलसरी आफ्टर योर एमटेक। सो आपने जैसे एमटेक किया, अच्छा सीजीपीए आप एंटर हो गए, देन कम्स आउट 2 राउंड्स, 2 राउंड होते हैं आईआईटी बॉम्बे में। पहला राउंड होता है सर, अभी रिटर्न हो चुका है, मेरे टाइम पर सर इंटरव्यू था। तो बेसिक कॉन्सेप्ट पे होते हैं, 3 बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं, वाटर, वेस्ट वाटर, एयर पॉल्यूशन, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। मेरा सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट पे था। After you complete your first round, then it will be a second round which will be direct interaction with the guide. आपका गाइड के साथ डायरेक्ट इंटरेक्शन होगा। पहले 5 पैनलिस्ट होंगे प्रोफेसर्स के, वो बारी बारी आपको क्वेश्चन पूछेंगे और वो आपको इवैल्यूएटली मार्क्स देंगे। अकॉर्डिंग टू दैट मार्क्स एक मेरिट लिस्ट बनेगी, वो मेरिट लिस्ट के अकॉर्डिंग फिर आप अपने गाइड से इंटरेक्शन करेंगे। आपको ऑप्शंस दिया जाएगा 3 गाइड का, उनके टॉपिक्स भी फ्लोट होंगे साथ में ही। आप उनको प्रेफरेंस में डाल दीजिए, आप फिर उनके साथ इंटरेक्शन होगा, तीनों के साथ, तीनों कुछ पूछेंगे, एंड अकॉर्डिंगली इफ दे फील दैट यू आर गुड they will call you. During my time it was nearly 350 in first round. They got only 35 students, 35 या 37 students उन्होंने सिलेक्ट किए थे फाइनल राउंड में, और शायद स्क्रीनिंग के लिए तो और भी आए होंगे अब 500। सो दिस इज द प्रोसेस, कंप्लीट प्रोसेस। अभी रिटर्न पेपर हो गया फर्स्ट राउंड, नाउ इट्स रिटर्न पेपर। सो आपको रिटर्न एमसीक्यू रहेगा ऑनलाइन, उन लोग टेस्ट लेंगे, एंड देन सेकंड राउंड विल बी अगेन इंटरेक्शन राउंड। Okay. So it is very important first thing आपका CGPA स्क्रीनिंग के लिए, क्योंकि मेरे कुछ सीनियर्स हैं वो लास्ट 3 ईयर से ट्राई कर रहे हैं आईआईटी बॉम्बे में एटलीस्ट कॉल आने के लिए, बट उनका CGPA है 7.63 7.77, उनको कॉल ही नहीं आ रहा है। सेम इज विद केस फॉर सम ऑफ द ओल्ड आईआईटीज, तो सर कॉल नहीं आता है। तो एमटेक का CGPA बहुत इंपॉर्टेंट, एकदम कोर है। इफ यू डोंट, इवन इफ यू डोंट हैव गेट स्कोर चलेगा, एमटेक का CGPA अच्छा होना जरूरी है। बिकॉज दिस ईयर आईआईटी बॉम्बे का कट ऑफ 8.5 ही चला गया था। ऑफिशियली 6 शो करते हैं बट डिपार्टमेंट 8.5 कर देता है। 8.5 लेता है, सही है। जी हाँ। और पीएचडी में सर आफ्टर यू एंटर वो तो अलग साइकिल है, वो तो उन लोग समझा देंगे, बट एंट्री तक का ये प्रोसीजर है। हाँ, तो देव 3-4 चीज आपसे पूछूंगा जो आपने मेरे को ब्रीफली बहुत अच्छे तरीके से बता दिया। एक तो आपने ये बताया कि सब हर जगह गेट नहीं चाहिए, मतलब आईआईटी बॉम्बे में तो आपने बताया गेट नहीं चाहिए। मैं आपसे ये भी पूछूंगा कि और कहाँ पे ऐसा इंस्टीट्यूट है, मैं जहां तक मैं जानता हूँ पुराने आईआईटीज में गेट नहीं मांगते। अगर एमटेक है तो एमटेक का CGPA एक क्राइटेरिया है इंटरव्यू कॉल आने के लिए, और मेरे ख्याल से आईआईटी दिल्ली में भी गेट नहीं मांगते, आईआईटी मद्रास वगैरह में भी शायद गेट नहीं मांगते। जो पुराने आईआईटी वहां नहीं मांगते, लेकिन जो नए आईआईटीज हैं वहां बोलते हैं गेट आपका वैलिड स्कोर होना चाहिए। तो वैलिड स्कोर मतलब कि क्वालिफाई हो आपके पास, वो मेरे ख्याल से मांगते हैं, लेकिन पुराने में नहीं मांगते जो प्रेस्टिजियस हैं। तो आपने बताया कि एक तो एमटेक का CGPA बहुत इंपॉर्टेंट है, और जनरल कैटेगरी में 8.5 सेफ होता है, 8.5 प्लस, और कंपटीशन समर्स के कंपैरिजन में विंटर में थोड़ा सा कम आप मान सकते हैं। अब इसमें एक आपने बहुत अच्छा पॉइंट और बताया कि आपका जो प्रोजेक्ट था जिससे आपको 3 रिसर्च पेपर भी आपने निकाल लिए थे एलजीबीआर में, वो एक बहुत बड़ा कैच है, वो बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज है। अब मेरे को ये बताओ, इसमें देव एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो आपके प्रोफाइल में है वो ये है, स्टूडेंट्स को ये लगता है कि साहब अगर हमें आईआईटी बॉम्बे जैसे इंस्टीट्यूट में पीएचडी के लिए जाना है तो हमारा एमटेक भी आईआईटी या एनआईटी से होना चाहिए। इसके ऊपर मैं आपका आंसर जानना चाहूंगा। सर मेरे बैच में हम लोग 14 लोग हैं, और उसमें से हम लोग 3 लोग टोटल समर और विंटर का मिला के हम लोग 14 लोग हैं, एंड ओनली वी 3 आर फ्रॉम गवर्नमेंट कॉलेजेस या प्राइवेट कॉलेजेस, बाकी सब एनआईटीज एंड आईआईटी से। So at some point it is true, but at some point there are few places where you get enter, because जब मैंने अप्लाई किया था तब तो मेरा गेट स्कोर भी वैलिड नहीं था। मतलब ये नहीं है कि सिर्फ वहीं से होना है, मतलब अगर कैपेबल हो आप, तो चाहे आप आईआईटी एनआईटी में बैठे हो, चाहे आप किसी कॉलेज में, स्टेट कॉलेज के कॉलेज में बैठे हैं, चाहे प्राइवेट में बैठे हैं, अगर आपने काम अच्छा किया तो प्रोफेसर को उससे मतलब है। डेफिनेटली वो, और बहुत डिटेल स्क्रूटिनी चलती है वो काफी देर तक। मेरा फर्स्ट राउंड 35 मिनट्स था, सेकंड राउंड मेरा 45-40 मिनट्स था, तो वो और इवैल्यूएट करते हैं बिकॉज यू आर फ्रॉम लोकल कॉलेजेस, सो आपको तो और प्रूफ करना पड़ता है वो पॉइंट। अच्छा, एक आपने नीरी का बात किया, CSI या नीरी का, इसके बारे में लोगों को नहीं पता, मतलब स्टूडेंट्स को इसके बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं पता, तो आप देख थोड़ा सा हमें बताएं ये है क्या CSI या
एक्चुअली सर ये ब्रिटिश गवर्नमेंट की एक बॉडी थी लेट इन 1940s, उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था आइडिया, काउंसिल फॉर साइंटिफिक इंडस्ट्रियल रिसर्च, दैट इज कॉल्ड CSIR। सो इनके अकॉर्डिंग 46 मेन इनके ऑफिसेस खुले थे अलग अलग डोमेन में, जैसे कोई मटेरियल पे काम कर रहा है, कोई इंडस्ट्रियल चीजों पे काम कर रहा है, समथिंग। वैसे ही नीरी एक एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट था जो कि स्टैब्लिश हुआ था इन लेट 1960s। सो एक्चुअली इसमें कॉन्सेप्ट ऐसा है सर, ये लोग सिर्फ इंडस्ट्रीज और गवर्नमेंट से प्रोजेक्ट लेते हैं एनवायरमेंट रिलेटेड थ्रेट्स को सॉल्व करने के लिए। सो एक्चुअली यहाँ पर जितने भी साइंटिस्ट हैं, मोस्ट ऑफ ऑल, इसमें बहुत सारे इनके ब्रांचेस हैं। मेन ब्रांच नागपुर में है, बट इनके मल्टीपल जोन्स हैं, जैसे कि हैदराबाद में है, मुंबई में है, they have got zones, but वो उतने एक्टिव नहीं है प्रोजेक्ट्स के कंपैरेटिव में। बट नीरी में फायदा ऐसा है सर कि आपको कोई इंटरव्यू नहीं देना है फॉर योर इंटर्नशिप। You can directly mail to a professor, and if professors like your profile, he will call you, or you have to call him, and then you have to go and meet him. कुछ एक अमाउंट होता है जो कि इंटर्नशिप का, वो तो अभी रिसेंटली चालू किया, मेरे टाइम पे तो वो भी नहीं था, कि you have to pay 2000 और 1000 समथिंग मंथली, and you have to do your internship. फायदा ऐसा है सर, वो इंटर्नशिप में आपको इतनी अच्छी इंस्ट्रूमेंट्स जो कि करोड़ों रुपए की है, इवन दिस विल बी एन, ये स्टेटमेंट जो मैं करूंगा शायद गलत भी हो जाएगा, कि IIT बॉम्बे के पास भी नहीं है, वो नीरी के पास है। नहीं, ये सही स्टेटमेंट है, क्योंकि पर्पस अलग है ना, IIT बॉम्बे का अलग डोमेन है और उसका वो अलग डोमेन है। बिल्कुल सही स्टेटमेंट दिया है आपने। हाँ जी। सर सबसे अच्छी बात तो ये सर, यहाँ पर आपको दोनों एस्पेक्ट देखने मिलता है, एक साइंस का एक अलग एस्पेक्ट देखने मिलेगा और एक इंजीनियरिंग का अलग एस्पेक्ट मिलेगा। तो आपको बहुत इंसाइट मिल जाता है, इंस्ट्रूमेंट्स पे हैंड ऑन एक्सपीरियंस हो जाता है। और यही जब आप अपने एमटेक में यदि आप काम करेंगे और आपके इंस्टीट्यूट में यदि कोई लैब में ऑपरेटर्स नहीं है या इंस्ट्रूमेंट नहीं है, तो आपको बाहर पे करना पड़ता है और फिर उस सैंपल को रन करवा के अपने थीसिस में ऐड करना पड़ता है उसका डेटा। बट यहाँ पर एक चीज अच्छा है, जो प्रोफेसर है वो आपको अपने प्रोजेक्ट के थ्रू ही वहां पर काम करवा देगा, फंड दे देगा, और आपका सैंपल भी रन हो जाएगा, आपका एमटेक भी हो जाएगा, उसका प्रोजेक्ट भी हो जाएगा। सो मतलब सिंगल एरो कैन हिट टू बुल्सआई। सो ये बहुत ही अच्छा एक्सपोजर है। आई विल रिकमेंड इवन माय जूनियर्स आल्सो, आई एम टेलिंग देम दैट यू शुड गो टू नीरी, इवन इफ 2000 जा रहे हैं महीने का। हाउ कैन दे गो, हाउ दे कैन गो देयर, हाउ दे कैन डू द ट्रेनिंग देयर? मैंने ये मेरा तरीका ऐसा किया था, मैंने उनके वेबसाइट पे गया, उनका पूरा का पूरा जो PDF था मैंने डाउनलोड कर लिया साइंटिस्ट का, उनके कांटेक्ट डिटेल्स का, और एक मेल ड्राफ्ट किया कॉमन, सबको ऐड किया और सबको भेज दिया। जिसका रिप्लाई आ गया उसका आ गया मेथड। हाँ, उस समय एक्चुअली बहुत रॉ थे हम लोग सर, हम लोगों को पता भी नहीं था कि कौन से डोमेन में करना चाहिए। But luckily I got someone who was very helpful, and within that 2 span वो पर्सन बहुत ही वेल नोन थे, मुझे इनिशियली नहीं पता था, बट उनके साथ काम करके फिर एक्सपोजर बहुत अच्छा मिल गया। अच्छा देव, अब आते हैं IIT बॉम्बे के PhD प्रोग्राम के बारे में। तो इसके बारे में थोड़ा सा बताओ, लैब्स कैसी हैं और वहाँ पे एनवायरनमेंट कैसा है IIT बॉम्बे का? एंड आई एम वेरी श्योर आपने कैंपस भी अभी जा चुके होंगे वहाँ, तो किस तरीके का है सारा वहाँ पे, प्रोफेसर्स कैसे हैं, वर्क कैसा होता है IIT बॉम्बे के बारे में? जी हाँ सर। सर एक्चुअली इसको स्टार्ट करने से पहले मेरा दोनों जगह एक्सपीरियंस रहा है, एक रिसर्च इंस्टीट्यूट्स में रहा है और एक एकेडमिक इंस्टीट्यूट्स में रहा है। सो IIT बॉम्बे इज एन एकेडमिक इंस्टीट्यूट एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट इज समथिंग वेरी डिफरेंट। हालांकि दोनों का ऑब्जेक्टिव सेम है कुछ पार्ट में, बट इन नीरी देयर वाज नो एकेडमिक एस्पेक्ट। आपको पढ़ाना नहीं है, पढ़ना नहीं है, आपको केवल रिसर्च करना है, पेपर्स पढ़ना है, टेस्ट करना है, मेथोडोलॉजी बनानी है, फोकस करना है रिसर्च पे। बट इन IIT बॉम्बे जब आप आते हैं तो अब कुछ पार्ट आपका बढ़ जाएगा। वन इज द एकेडमिक पार्ट, आपको यहाँ TA ड्यूटी भी करनी है, आपको पढ़ाना भी है, पढ़ना भी है, अपार्ट फ्रॉम योर रिसर्च। अदर देन दैट आपको अपने रिसर्च का भी पढ़ना है। सो देयर आर 2 डिफरेंट लिंक्स इन एकेडमिक, मतलब IIT बॉम्बे में। शायद यही रीजन है कि IIT में आपको समय थोड़ा ज्यादा लग सकता है, बिकॉज आपको फोकस पूरी तरीके से रिसर्च पे नहीं है, बहुत सारी चीजें आती है। एंड कमिंग बैक टू लैब्स, अभी रिसेंटली जो मेरा डिपार्टमेंट है उनका पूरा का पूरा न्यू बिल्डिंग शिफ्ट हुआ है। इनिशियली काफी छोटा सेंटर था, बट नाउ दे हैव ट्रांसफॉर्म इट इनटू अ डिपार्टमेंट। सो लैब्स पूरी तरीके से फ्लरिश्ड है, आपको कोई चीज का इशू नहीं होगा। देयर इज नो प्रॉब्लम ऑफ फंडिंग। ऐसा नहीं है कि आपके पैसे की वजह से आपका काम रुक जाएगा, ऐसा जरा भी नहीं है। और गाइड्स भी अच्छे हैं, आपको हर एरिया के गाइड मिलेंगे, आपको जो भी चाहिए। फॉर एग्जांपल इफ यू वांट टू इन सॉलिड वेस्ट, वाटर, वेस्ट वाटर, हर एक दो आपको ऑप्शन मिल ही जाएगा हर गाइड का। यस सर, गो अहेड। लैब्स एक्सप्लोर्ड है और IIT बॉम्बे का कैंपस
बीइंग एन ओल्ड आईआईटी तो थोड़ा सा और क्रेज बढ़ जाता है, बहुत सारे इवेंट्स होते हैं वहां पर। अभी रिसेंटली तो कोविड की वजह से नहीं हो रहे हैं, जैसे इस बार मूड इंडिगो था तो ऑनलाइन हुआ, बट कैंपस इज ऑसम। देयर आर बहुत अच्छा मतलब वर्क प्लेस है। और उससे भी इम्पोर्टेंट अच्छा ये चीज मुझे लगा आईआईटी बॉम्बे का, स्पेशली एसीटी का, प्रोफेसर्स आर वेरी ओपन टू सम पॉइंट्स। जैसे आपको 9 to 6 अगर काम करना आपको ठीक लगता है, यू कैन वर्क। इफ यू वांट टू वर्क आफ्टर 8, यू कैन आल्सो वर्क एट दैट टाइम। कोई इशू नहीं है, कोई मतलब एक बोलते हैं ना फोर्स एम्बेडेड काम नहीं है। स्लोली साइमल्टेनियसली आपको पूरा फ्रीडम है करने का। सो दैट्स व्हाट आई लाइक अबाउट इट। यूजुअली इसमें भी मतलब अगर मैं इसमें भी जाऊं तो 3 कैटेगरीज है, एक टीए कैटेगरी, एक टीएपी कैटेगरी और एक एक्सटर्नल फेलोशिप। तो एक्सटर्नल फेलोशिप को तो टीए ड्यूटी भी नहीं करनी है, सिर्फ रिसर्च करना है। और जो टैप और टीए ड्यूटी है, आई मीन टीए कैटेगरी, सो हम लोगों की एमएचआरडी सीट अलॉटेड कुछ ऐसा स्कीम है, उसमें है। तो हम लोगों को टीए वर्क भी करना पड़ता है और ये भी काम करना पड़ता है, दोनों साइमल्टेनियसली, रिसर्च का भी। बट टैप वालों के लिए ये 2 काम के साथ में और एक एक्सटर्नल काम है जो कि प्रोजेक्ट के रिपोर्ट बनाना, जिसमें उनका पीएचडी रजिस्टर्ड है। ओके, सो थोड़ा सा उनके लिए हेक्टिक हो जाता है। बट एक अपग्रेड पॉइंट ये है सर कि उन लोगों को कहीं ना कहीं पीएचडी जल्दी अवार्ड होने के चांसेस होते हैं, बिकॉज कोई भी प्रोजेक्ट 5 साल का नहीं होता है सर, वो 3 से 4 साल का होता है। So if they complete project, you are going to complete your PhD. तो स्कॉलरशिप सेम मिलता है क्या टीए कैटेगरी में और टीएपी कैटेगरी में? एक्चुअली ओवरऑल तो ऐसे सेम ही है टीए और टीएपी को, बट कुछ ऑर्गेनाइज, फॉर एग्जांपल मेरे कलीग है जो कि शायद कोल इंडिया के प्रोजेक्ट पे है। सो कोल इंडिया के प्रोजेक्ट पे रहने का फायदा ये है टीएपी में कि उनको 5000 एक्स्ट्रा मिलता है। दैट मींस उनको 35 मिलता है, मुझे 31 मिल रहा है तो उनको 35। अच्छा देव, ये तो अभी जैसे आपको 31,000 मिल रहा है, तो हॉस्टल खर्चा, फीस वगैरह कितनी होती है और कितना बचा लेते हैं? अब ये क्वेश्चन बड़ा और सा क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी पूछूंगा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे जिनको घर भी पैसे थोड़े शायद सेव करने हैं एंड ऑल। 31,000 में कितना बचा सकता है बच्चा? फीस कितनी है? हॉस्टल का खर्चा कितना है? सर मैं भी वही कैटेगरी में, जो घर देने वाला जो पार्ट है, मैं भी उसी कैटेगरी में। एक्चुअली सर 31 में एक बहुत अच्छी बात तो ये कि 31 में आपको उसी दिन, मतलब 10 तारीख है तो 10 तारीख को पैसे मिल जाएंगे। फर्स्ट थिंग बहुत अच्छी है। सीएसआईआर में मुझे ये चीज नहीं दिखी, आपका 10 तारीख है तो 20 तारीख हो जाएगा, प्रोजेक्ट फंडिंग है। पर यहाँ पर चाहे टीएपी हो चाहे टीओ, 10 तारीख को फंडिंग आ जाएगी। सेकंड बात, आपको सेमेस्टर वाइज पे करना रहता है फीस। तो ओवरऑल ट्यूशन फीस तो 2500 है, दैट्स इट। आपको जो एकेडमिक का जो फीस है वो 2500, दैट्स इट। पर जो हॉस्टल का फीस है, हॉस्टल का फीस और 2500 है। मतलब अगर मैं ओवरऑल काउंट करूं, इंश्योरेंस, मेडिकल फैसिलिटीज मिला के आपको 10,000 रुपीज हर सेमेस्टर देना है। अच्छा। और प्लस अब आ जाता है खाने का एक्सपेंडिचर थोड़ा अलग है, अलग पार्ट है। अब जैसे हम लोगों से हॉस्टल टू हॉस्टल वेरी करता है एक्सपेंडिचर। अब मैं कोई पर्टिकुलर हॉस्टल में हूँ, वहां से मेरे से लिया जाता है 25-27,000 एक सेमेस्टर में। अच्छा। बट यूजुअली इतना यूज नहीं होता है पैसा, मुझे सेमेस्टर के एंड में 5-7,000 वापस मिल जाता है। तो पर सेमेस्टर 30,000। अगर उसको हम लोग डिवाइड कर ले 5 के साथ, 6 के साथ भी, नॉट मोर देन 5,000। मतलब हम लोग अच्छे से खा पी के भी, बाहर से भी खा पी के भी, वी कैन इजीली सेव 25,000, 22-25,000 तो बच 20,000 बच सकता है बच्चे को। 20,000 आराम से सर, आराम से। अच्छा, बहुत अच्छा है। अब देव एक और चीज आपसे पूछूंगा इसमें, जो सबसे बड़ी दिमाग पे रिस्ट्रिक्शन होता है बच्चे के, वो 2 क्वेश्चन होते हैं। एक कि सर पीएचडी बहुत लंबा प्रोग्राम है, कितने साल लग जाएंगे एमटेक के बाद? नंबर 2 कि सर पीएचडी करने के बाद करेंगे क्या? ये 2 क्वेश्चन का आंसर करो। सर मतलब मेरा थोड़ा सा इसमें ये चीज है कि अगर आपको पीएचडी करना है तो गैप मत लीजिए। कोई मतलब नहीं है सर। मेरे साथ अब जैसे मैंने बताया, मेरे 14 लोग हैं हम लोग एक बैच में, उसमें से 10 लोग ऐसे हैं सर, दे आर अराउंड 30। और हम लोग कुछ ही लोग ऐसे हैं जो 25, मैं 26 का हूँ, मेरे साथ एक कलीग है 25 का। तो हम लोग 2 ही लोग ऐसे हैं जो बहुत छोटे हैं, 2-3 लोग, बाकी सब ऑलमोस्ट 30 के अराउंड है, 30-32। तो होता क्या है सर, उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है वापस बैक टू एकेडमिक्स आने में। भले वो टीचिंग वीचिंग की होते हैं कहीं, बट उनको थोड़ा सा दिक्कत होता है। सो मेरा तो ओपिनियन ये है, करना है तो गैप मत लीजिए। दूसरी बात ये कि आप इंडिया में करिए, यूएस में इवन यूनिवर्सिटीज वेरी करेगी, फॉरेन में भी शायद कुछ यूनिवर्सिटीज में 3 से 4 साल में हो जाए, बट इन आईआईटीज मोस्टली आपका 5 टच हो ही जाता है, प्रोसेस स्लो है। और जहां तक लोड की बात है, गाइड आपको कोई बहुत ज्यादा गाइडेंस, मतलब आप पूरा डिपेंडेंट नहीं हो सकते गाइड पे। कई बार अब इसमें भी 2 एस्पेक्ट है। प्रोसेस ही ऐसा है कि सेल्फ एक्सप्लोरेशन करना है आपको। करेक्ट सर। और इसमें भी सर 2 एस्पेक्ट है। अब जैसे गाइड, इफ यू आर अंडर समवन हु इज अ प्रोफेसर,
and you are under and other person is under assistant professor, सही है, तो obviously assistant professor थोड़े ज्यादा एक्टिव होंगे। सही है। मेरा ये बोलना नहीं कि प्रोफेसर एक्टिव नहीं प्रोफेसर कुछ होंगे। नहीं करते। हाँ। ये नहीं है कि कुछ नहीं करते, वो उनका अलग नॉलेज बेस है, उनका अलग। Yes, yes, yes. पर जो प्रोफेसर होते हैं वो थोड़े से बिजी होते हैं अपने प्रोजेक्ट्स में, अलग अलग चीजों में, तो एडमिनिस्ट्रेटिव भी उनके ऊपर काफी बर्डन होता है एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटीज का। यस सर, यस सर, यस। सही है। और वही असिस्टेंट प्रोफेसर होते हैं वो बहुत ज्यादा एक्टिव होते हैं, मतलब आपसे पब्लिकेशन भी करवाएंगे, आपका जल्दी जल्दी भी करवाएंगे, बिकॉज इफ यू विल गो आउट अर्लियर, उनको प्रमोशन है, उनको प्रमोशन मिलेगा आपके जाने से। सो ये बेनिफिट दोनों, मतलब मेरा तो ऐसा जितना मैंने अभी तक देखा है इन CSI नीरी ऑल्सो, इन IIT बॉम्बे ऑल्सो, कुछ कलीग्स भी है मेरे जो IIT खड़गपुर में जो पास आउट है, इट विल टेक 4 to 5 years। सो मेंटली आप तैयार हो जाइए कि 4-5 साल लगेगा। बट गुड थिंग इज दैट नाउ करंटली इन IIT बॉम्बे one good fellowship has come in all the IITs, that is Prime Minister Research Fellowship। ओके। मैंने, हाँ, अमाउंट ऑफ पीपल को तो कम ही मिलता है वो मुझे पता है, बट एक्चुअली देयर इज अ कैच। पहले कैसे था, हम लोग को डायरेक्टली ऑनलाइन पोर्टल पे भरना रहता था। नाउ देयर इज अ स्पेशल स्कीम ऑफ लैटरल एंट्री। आपने PhD ज्वाइन कर दिया, अब एंटर करिए आप। तो यहाँ पर सर ऑलमोस्ट कंपटीशन 50% कम हो जाता है। अच्छा। क्योंकि जैसे अब मेरे डिपार्टमेंट में टोटल 4 जगह है PMRF की, और हमारे बैच में 14 लोग थे, पर किसी का 8.5 बना नहीं, तो हम लोग सिर्फ 7 लोग एलिजिबल हुए। अच्छा। तो चांसेस हो गए 50%। अब उसमें भी 4 में से 3 सीट अलॉटेड होती है लैटरल एंट्री को। लैटरल एंट्री जो PhD फर्स्ट ईयर कर चुके हैं, जैसे मेरे जैसे लोग, तो हम लोग के चांसेस और बढ़ गए, मोर देन 50% चांस हो गया। नहीं, मेरे को फिर से बताओ, मेरे को समझ नहीं आया, फिर से बताओ। PMRF जब आप अप्लाई करोगे, अब PMRF में वही अप्लाई कर सकता है जिसने जो PhD में एनरोल्ड है, राइट? करेक्ट, करेक्ट, यस। अच्छा, और दूसरा आपने बताया कि ये लेटरल एंट्री है, मतलब जो PhD वाला बच्चा है वही इसमें जाएगा। करेक्ट, यस। तो आपने CGPA की रिक्वायरमेंट भी बताई, वो कितनी थी? 8.5 थी सर वो। 8.5। और कौन से सेमेस्टर, दैट इज फर्स्ट सेमेस्टर के बाद आप अप्लाई कर सकते हैं? एक्चुअली सर इसमें सेमेस्टर का इशू नहीं है, आपके 4 कोर्सेज कंप्लीट होने चाहिए। अच्छा। इन IIT बॉम्बे में तो ये रूल है कि आप 4 कोर्सेज कंप्लीट कर लीजिए, चाहे फर्स्ट सेमेस्टर में करिए, चाहे सेकंड सेमेस्टर में करिए, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं, बट आप विद इन 1 ईयर ही अप्लाई कर सकते हैं। सही है। अब मेरे बैच में कुछ बच्चों ने ऐसा किया था, 4 कोर्सेज एक ही सेमेस्टर में ले लिया, पॉइंटर 8.5 ऊपर बना लिया, उन्होंने कभी भी अप्लाई किया, नहीं सिलेक्ट हुआ तो नेक्स्ट सेमेस्टर फिर से अप्लाई कर दिया। दोबारा भी अप्लाई कर सकते हैं। हाँ, यू गेट 2 चांसेस। अच्छा। सो ऑप्शन है, और उसमें बहुत हेल्दी पे है सर, 70-80,000 यू गेट, एंड देयर इज अ चांस कि आप अच्छा, वो enjoy कर सकते हो इसके पैसा। क्या क्राइटेरिया क्या होता है उनका? एक तो CGPA बता दिया आपने, और क्या क्राइटेरिया होता है? एक्चुअली सर इसमें बहुत बड़ा पॉइंट ये है आपका रिसर्च एक्सपीरियंस। आपका जो CV रहेगा वो आपकी वैल्यू बताएगा। आपकी अच्छी CV, अच्छे पब्लिकेशंस, ये आपके चांसेस बढ़ा देगा। अब जिस बच्चे के पास पब्लिकेशन नहीं है, M.Tech के बाद पब्लिकेशन नहीं है, वो एक सेमेस्टर में पब्लिकेशन हो भी नहीं पाएगा उसके पास। करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट। तो कैसे वो चांसेस कम हो जाते हैं, बट स्टिल देयर इज अ चांस, बिकॉज होता क्या है सर, कई बार बच्चे 8.5 IIT में बना भी नहीं पाते पॉइंट तक। तो यदि आपने बना लिया और 4 एप्लीकेशन गए और 4 जगह है तो चारों को मिल गए। और जैसे सर मेरे डिपार्टमेंट में ऐसा हुआ था, इंटरव्यू भी एक इम्पोर्टेंट पार्ट रहेगा उसका, मतलब इंटरव्यू में नो सर, नो, नहीं सर, नहीं सर। अच्छा। इसमें सर स्कीम ऐसी है कि यू हैव टू गिव नो इंटरव्यू, ओनली योर एप्लीकेशन विल गो। अच्छा, बस 3 जगह से सर स्क्रीनिंग होगी आपकी एप्लीकेशन की, पहले डिपार्टमेंट से, फिर IIT के पूरे IIT बॉम्बे से, फिर जाएगा IIT दिल्ली से। यदि 3 जगह पे आपका स्क्रीन आउट हो गया, मतलब आप सिलेक्ट हो गए तीनों जगह पे, यू विल गेट PMRF। अच्छा, और ये कितने स्कॉलरशिप होते हैं ऐसे? आपने बताया कि 14 में से 4 है, तो ये डिपार्टमेंट में कैसे डिवाइड हो रहा है कि कितना डिपार्टमेंट में कितना स्कॉलरशिप? सर एक्चुअली द मैक्सिमम वन जो मैंने देखा था लिस्ट, वो IIT दिल्ली के पास है, उसके बाद ISC बैंगलोर है, और फिर IIT बॉम्बे है। टोटल ओवरऑल IIT बॉम्बे में सीट अलॉटेड है 78 और लैटरल एंट्री, लैटरल प्लस डायरेक्ट। तो और वही दिल्ली में उसका ज्यादा है। तो IIT बॉम्बे में हजारों में चला जाएगा, पूरे IITs ISCs मिला 1000 जगह है स्कॉलरशिप है। हाँ सर, टोटल 1000 जगह है। मिलता है ये? हाँ सर, ये कितने साल तक मिलता रहता है फिर स्कॉलरशिप? ये एक्चुअली सर जो अब जैसे मेरे जैसे M.Tech करके जो लोग आए हैं उनके लिए 3 साल एंड 6 मंथ ऑफ एक्सटेंशन। मतलब सेकेंड ईयर में, क्योंकि मेरी सेकेंड ईयर से फेलोशिप एक्टिव होगी, तो सेकेंड ईयर में मुझे पे हो जाएगा 70, थर्ड ईयर में हो जाएगा 75, फोर्थ ईयर में हो जाएगा 80। इफ 6 मंथ ऑफ एक्सटेंशन इज रिक्वायर्ड तो 80 ही चलेगा मेरा। बट इसमें एक ऐसा है, फ्रॉम योर एनुअल प्रोग्रेस सेमिनार
अपार्ट फ्रॉम योर एनुअल प्रोग्रेस सेमिनार जो कि आईआईटी बॉम्बे में देना होता है, उसके अलावा भी आपको हर साल पीएमआरएफ कमेटी को भी एक प्रेजेंटेशन देना होगा, और वहां से यदि डिसअप्रूव कर दिया उन्होंने, फंडिंग रुक जाएगी। अच्छा, तो ये भी एक कैच है, पर अच्छी अपॉर्चुनिटी है, ये मोटिवेट भी करेगा पीएचडीज को कि वो अच्छा काम करें, सो दैट उनको स्कॉलरशिप मिल सके, राइट? जी हाँ सर। अब देव, लास्ट क्वेश्चन है कि व्हाट आफ्टर पीएचडी? सर वो क्वेश्चन तो हमेशा ही रहेगा ओपन। मतलब बीइंग एन पीएचडी स्टूडेंट, मैं खुद भी यही कभी कभार सोचता हूँ कि आफ्टर पीएचडी व्हाट, बट देयर आर गुड ऑप्शंस। मतलब जैसे मेरे सीनियर्स हैं जो कि पास आउट हुए हैं, दे आर इन सम एनआईटीज, दे हैव टर्न्ड आउट टू बी अ प्रोफेसर। देयर आर सम पीपल हु आर आउटसाइड डूइंग पोस्ट डॉक। कुछ लोग तो वापस ही नहीं आए, पोस्ट डॉक में सेटल हो गए, वहां पे कोई प्रोफेसर बन गया। बट व्हाट आई फील, व्हाट माय गट फीलिंग इज दैट within your PhD, it is very important, apart from your research, you make a good collaborations yourself. Yes. आपके प्रोफेसर के साथ तो होना ही चाहिए, बट अपार्ट फ्रॉम दैट, क्योंकि कई बार होता क्या है सर, पता है वो जो 5 इयर्स का लॉन्ग स्ट्रिंग है ना, जरूरी नहीं है वो स्ट्रिंग एक समान हो एक पर्सन के साथ आपका। तो आपको कोशिश करना है कि अपार्ट फ्रॉम योर प्रोफेसर यू शुड हैव गुड कोलैबोरेशन विद अदर प्रोफेसर। वो आप कॉन्फ्रेंस में जा रहे हैं, आप कहीं मिल रहे हैं उनसे इन पर्सन, तो आप कांटेक्ट कर लीजिए, क्योंकि दे विल ऑफर यू द अपॉर्चुनिटी। गाइड तो ऑब्वियसली करेंगे ही, बट यदि आपके पास और बेटर ऑप्शंस होंगे तो आप वहां जा सकते हैं। सही है। जैसे मेरे एमटेक के जो गाइड थे सीएसआईआर नीरी के, आई एम स्टिल इन कांटेक्ट विद हिम बिकॉज आई शेयर विद अ बॉन्ड विद हिम आल्सो। सो आज भी उनसे बातचीत होती रहती है, फिर उनके थ्रू किसी और से भी मुलाकात हो गई तो उनसे बातचीत हो गई। इन पर्सन आपको इस पे भी फोकस करना है अपार्ट फ्रॉम योर पीएचडी। And that is all about PhD. I mean, collaborating with others and interacting with others and exploring the opportunities. That is what this course is all about, Dev. Yes, sir. Chalo, Sir, yeah. I have to add only one quick thing. Yes, yes. In environmental engineering, apart from this professory, people think that there is a professor, you should be a professor in some institute. Apart from that, there is one more option. You can become an environmental scientist. Okay. Because in every state there is a pollution control board unit. There are certain organizations like CSIR NEERI. Over there, they have some kind of post for environmental engineering as a scientist, scientist B post. So after doing PhD, you can get into that very quickly, just based on your interview. अभी आपने बताया तो मेरे को याद आया, इवन बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन ने जॉब्स निकाली हुई हैं बहुत सी, और एनवायरनमेंट उसका एक सिलेबस है बहुत डेप्थ में। यस सर। वो ऐसी अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं, और ज्यादा अपॉर्चुनिटीज बढ़ रही हैं ऐसी। अभी तो और आएगी सर, टाइम के साथ वो बढ़ने वाली है। एनवायरनमेंट का तो बढ़ेगा। हाँ सर। और सर ये जो हम जो कॉन्टेक्ट्स की बात कर रहे थे, कोलैबोरेशन जो आपकी पीएचडी के दौरान आप बनाएंगे, कई बार होता क्या है सर, आप जब इंटरव्यू में ऐसे बैठते हो, पैनलिस्ट बाहर से होते हैं, उस इंस्टीट्यूट से नहीं होते, तो यदि वो बैठ गए तो वो तो कहेंगे अरे मैं तो इसको जानता हूँ, आई नो हिम, आई हैव वर्कड विद हिम, आई हैव सीन हिम। तो कहीं ना कहीं वो भी फेवर मिल सकता है। पोस्ट डॉक्टरेट फेलोशिप में ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लिंक्डइन पे आपने को प्रोफेसर को पकड़ा है, वो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। दैट इज And sir, in IIT Bombay, they have started now this year that अगर आपका PhD का जॉब नहीं लग रहा है and you want to do postdoc, IIT Bombay आपको ऑब्जर्व कर लेगा अपने अंदर। अच्छा। उसी गाइड के अंदर या कोई और गाइड के अंदर आपको पोस्टडॉक दिला देगा। कोई जॉब नहीं लग गई, पोस्ट डॉक्टरेट फेलोशिप करो। पोस्टडॉक, और सर बहुत अच्छी पे उसमें, इट इज नाउ 85,000। अच्छा, इमीडिएटली आफ्टर PhD पोस्ट डॉक्टरेट फेलोशिप मिल जाएगी। यस। अच्छा, दैट इज वेरी गुड स्टेप, बिकॉज़ लोग डरते थे ना क्या होगा PhD के बाद। दैट इज यस सर। चलो कुछ लोग IIT BHU से आके यहाँ पर ज्वाइन किए हैं, मतलब IIT बॉम्बे में। So 85,000 रुपीज मतलब उसमें मिल जाता है पोस्ट डॉक्टरेट फेलोशिप में, राइट? यस सर। गुड। चलो देव, इट वाज वंडरफुल सेशन, मतलब बहुत इंफॉर्मेटिव, बहुत अच्छा। एक लास्ट आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि इस बार जो बच्चे एमटेक टू PhD जाना चाहते हैं ना सिविल डिपार्टमेंट, मैं चाहूंगा कि एक सेशन आपके साथ उनका हो, बिकॉज हम लोग तो ऑब्वियसली उनको बताते ही रहते हैं, हम उनको इन्फॉर्मेशन देते भी हैं, लेकिन जो फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस आप जैसे लोगों का होगा वो उनके लिए बहुत वैल्यूएबल रहेगा। तो इस बार आपको मैं इनवाइट करूंगा एक जूम इंटरेक्शन के लिए, और जो स्टूडेंट इंफॉर्मेशन लेना चाहे उस स्टूडेंट को हम आपके थ्रू कांटेक्ट करवा के फिर उनको ऐसी इनपुट्स दिलवाएंगे, मतलब कि वो आपसे लर्न कर सकें और आपसे क्वेश्चन पूछ सकें अगर कोई भी उनको क्वेश्चन है दिमाग में, और वो अपना फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस ले सकें। तो आपके टाइम अवेलेबिलिटी के हिसाब से देव हाफ एन आवर एक शेड्यूल फिक्स करके एंड वो हम इस बार प्लान करेंगे, राइट देव? Yes sir. Thanks a lot, Dev, for your time. Or it was a wonderful session. Thank you, sir. Thank you.